मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। अग्निकन्या भवन उषाग्राम आसनसोल में बजरंग दल एवं सुरेंद्र स्मृति साहित्य सम्मान का हुआ आयोजन। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में चल रहे अंतर्गत सत्ता संघर्ष के बीच पार्टी के सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कौन बनेगा पार्टी का अगला नेता। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों की आंदोलन पर याचिका खारिज की। रानीगंज ट्रैफिक पुलिस के अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू। आज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी। लाइफ फाउंडेशन ने 20 जोड़ियों का किया विवाह समारोह का आयोजन, जिनमें से 12 हिंदू और 8 मुस्लिम थे। आइए सुनते हैं लाइफ फाउंडेशन के सचिव श्री शेख सदरुद्दीन क्या कहते हैं। বই খাতা ব্যাগ বিলি করা, তারপর হয়েছিল বন্যা ত্রাণের জন্য আমরা গিয়েছিলাম সুন্দরবন এলাকায়। 200 পরিবারকে আমরা প্রায় 1000 টাকা করে তুলে এসেছিলাম। এই লাইফ ফাউন্ডেশনে প্রতি বছরই আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়। বাচ্চারা যাতে খেলাধুলা করতে পারে তার জন্য তাদের ক্রিকেট ফুটবল আমরা বিতরণ করি। আগামী বছরও আমরা প্রায় 35খানা ফুটবল বিতরণ করি। আজকের দিনে বাচ্চারা এই মোবাইলের যুগে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা খুব খারাপ রাস্তায় চলে যাচ্ছে, তাদের শিক্ষার রুটি কমে যাচ্ছে, খেলাধুলা একদম মাঠমুখী হতে চায় না। তাই বাচ্চারা কিভাবে মাঠমুখী হতে পারে তার জন্য লাইফ ফাউন্ডেশন আলোচনা করল। যে আমাকে একদিন বললো যে অনেক বাচ্চারা ফুটবল কিনতে পারে না, তাদের যদি কিছু ফুটবল বিতরণ করা যায়। তাই তাদের আমরা এই বছর 35খানা ফুটবল কিনে দিয়েছিলাম। কিছু ছেলেদের আমরা জার্সি কিনে দিয়েছি, ক্রিকেট ব্যাট ক্রিকেট কিনে দিয়েছি। কিছু মানুষ যারা বই খাতাও কিনতে পারে না তাদেরকে আমরা প্রায়, আমার কাছে এটা নয়, আমার যখন বয়স 10 থেকে 15 বছর ছিল তখন থেকে আমার একটা মনের আগ্রহ ছিল যে কোনো মানুষ যদি আমার কাছে অনেক সময় আমি বাবার কাছ থেকে দিয়েও তাদের দিয়ে দিই। সেটাই ছিল আমার প্র্যাকটিসের বিষয়। প্রত্যেক দিন মানুষ আমার কাছে সাহায্য করতে আসে, কেউ মেডিকেলের সাহায্য, কেউ পড়াশোনার জন্য সাহায্য, কেউ করোনা দিয়ে দিতে পারছে না তার জন্য সাহায্য। এরকম সাহায্য আমার। তাই আমি একদিন স্বপ্নের মাধ্যমে দেখলাম, অপরালা আমায় বলল তোর কাছে তো ইনকামের অভাব নেই, তোর মেয়েরও তো বিয়ে দিবি, অনেক টাকা খরচা করবি, যদি পারিস তুই চেষ্টা কর যেন তুই গরিব মানুষদের, যেসব মেয়েদের বাবা নেই মা নেই বা যারা একদম গৃহ বিয়ে দিতে পারছে না তাদের ব্যবস্থা কর। তাই আমরা প্রোগ্রাম করলাম আগামী 2023 3রা ডিসেম্বর আমরা হিন্দু মুসলমান একসাথে মিলে 13টা মেয়ের বিয়ে দিতে। এবছর সেটা চেষ্টা করলাম কিছু বাড়াবার জন্য। তাই এই বছর আমরা 20 জোড়া, 20টা ছেলে 20টা মেয়ে আমরা দিতে পেরেছি। এবং এই প্রোগ্রাম আমাদের 2024-এর 8 ডিসেম্বর आइए सुनते हैं आसनसोल के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर चंद्र कुंडू क्या कहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर चंद्र कुंडू, जिला सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, सचिव बबलू पोद्दार, हाजी राजिया बीबी और अन्य जैसे कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सदरुद्दीन भाई सह জামুরিয়ার যারা যারা আছেন এই সংগঠনটাকে পরিচালনা করছেন তাদের সঙ্গে থাকবো, যখনই দরকার আমরা আসবো এবং এসে আজ
শারীরিকভাবে না করতে পারি, অন্তত চাক্ষুষ দেখে যাব যে অবয়বটা কত বেড়েছে, অর্থাৎ ঘনত্ব কত বেড়েছে, ভলিউম কত বেড়েছে। তা আমি সেদিন যখন দেখেছিলাম, সেদিনকে যে ছবি ছিল তার থেকে আজ অনেক অনেক গুণ বেশি মানুষ আজকে সমবেত হয়েছেন। তারপরে আমি আরেকবার এসেছিলাম এখানে, তখন একটা কল অর্থাৎ জলের কলের এখানে ক্রাইসিস ছিল। সেই ক্রাইসিসটাকে মেটাবার জন্য সদরুদ্দিন ভাই সহ এখানকার মানুষের প্রচেষ্টায় এখানে একটা কল, জলের কল, সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই ফাউন্ডেশন কমিটির তরফ থেকে। তারপরে আমি আরেকবার এসেছিলাম, সে দিনটা আমার কাছে আজও মনে আছে। তখন আমার জাস্ট মাতৃবিয়োগ হয়। আমি সদরুদ্দিন ভাইকে বলেছিলাম যে যেমনই হোক আমি আসবো। বোধহয় তার 3 দিন আগে আমার মায়ের মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। আমি শতকাজ ছেড়েও আমি এখানে এসেছিলাম এবং लाइफ फाउंडेशन एक अंगूठा संगठन है जो इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जहां हिंदू और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह फाउंडेशन जोड़ियों को उपहार भी देते हैं। কারুর ধর্মকে, কারুর দেবদেবীকে গালি দিও না, এটা কোরআন। কিন্তু কোরআনের ভাষা হয়তো অনেকে জানেন না, আমার অমুসলিম ভাইরা আছেন তাদেরকেও বলছি, কোরআনে স্পষ্ট আছে। আবার বলছে আয়াতটা, ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি ফায়াসুব্বুল্লাহা আদওয়াম বিগাইরি ইলম। তোমরা কারুর দেবদেবীকে গালি দিও না, কারুর ধর্মকে গালি দিও না। সে অজ্ঞাত অবস্থায় তোমার আল্লাহকে গালি দিলে তোমার ক্ষতি হবে। এটা 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর, পৃথিবীতে একটা মানবকে কেউ যদি মানুষকে হত্যা করে, কোরআনে আছে সে গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো। কেউ যদি একটা মানুষের উপকার করে, সে পুরো মানব জাতির উপকার করেছে। আজকে আমরা বুঝতে পারছি কতগুলো ফ্যামিলির বিবাহ এখানে হচ্ছে হিন্দু মুসলিম সকলের, তাদের যে হেল্প করেছে। আমাদের হাদিসে আছে কেউ যদি একটা গরিব মানুষের মেয়ের বিয়ে দেয়, একটা হজের নেকি পাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। একটা হজের নেকি, মক্কায় গেলে হজ করলে যে নেকি পাওয়া যায়, একটা গরিব মেয়ের দম্পতির বিবাহ দিলে সেই নেকি পাওয়া যায়। তো আজকে একটা মহান কাজ করেছে। যেমন আমার আগে ভাইজান বলছিলেন যে अग्निकन्या भवन उषाग्राम आसनसोल में बजरंग दल एवं सुरेंद्र स्मृति साहित्य सम्मान का हुआ आयोजन। आयोजन में विजय कुमार भारती को बजरंग स्मृति साहित्य सम्मान और रोहित प्रसाद पथिक को सुरेंद्र स्मृति युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किए गए। इस अवसर पर श्री दिनेश कुमार ने अपने दादा बजरंग लाल एवं पिता सुरेंद्र कुमार जी की स्मृति को बड़े ही अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। उनके पिता सुरेंद्र कुमार जी मात्र 36 वर्ष की उम्र में चल बसे थे, पर वे मेरी यादों में हमेशा ही जीवित रहे, उसी प्यार और स्नेह के साथ। आज जब मैंने पिता की यादों को तरोताज़ा तरीके से सुरेंद्र स्मृति युवा साहित्य सम्मान देकर किया। इस सम्मान को पाने वाले प्रथम युवा रोहित प्रसाद पथिक को बहुत बहुत बधाई। इस सम्मान के साथ युवा साहित्यकार को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा और इसे जारी रखने के संकल्प के साथ दिनेश कुमार जी ने हिंदी साहित्य को जीवित करने का प्रयास किया है। दादाजी बजरंग लाल जी ने मेरे जीवन को बदलकर रख दिया। कारण उनके विचारों में कबीर की वाणी है। उनकी कबीरपंथी समाज की निचली पंक्ति में खड़े लोगों को उठाने में सहायक सिद्ध हुई। उनका कहना ही है, शिक्षा से जीवन बदलेगा, इसलिए कभी शिक्षा विमुख नहीं होना है। वे मेरा प्रेरणादायक रहे। उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए बजरंग स्मृति साहित्य सम्मान 2024 प्रो विजय कुमार भारती जी को दिया गया, जिसे सप्रेम स्वीकार करते हुए डॉक्टर विजय कुमार भारती ने भी ये स्वीकार किया कि शिक्षा से ही समाज में फैली विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। दूसरा सत्र कवि सम्मेलन का रहा। सम्मानित कवि रोहित प्रसाद पथिक ने
ईश्वर को मरते देखा है कविता का पाठ किया। संजीव पांडे ने भोजपुरी कलम और तलवार कविता सुनाई। संजय सुमती, मार्टिन जान, अनवर शमीम, लालदीप, नीतू निशा, दिनेश कुमार और आनंद कुमार आनंद ने कविता सुनाई। इस आयोजन की अध्यक्षता मनोहर भाई पटेल ने की। संचालन कवि निशांत ने किया और अंत में सहयोग साहित्य एवं संस्कृति के विशिष्ट आयोजन के अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त किया। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में चल रहे अंतर्गत सत्ता संघर्ष के बीच पार्टी के सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कौन बनेगा पार्टी का अगला नेता। पार्टी के भीतर पुरानी पीढ़ी के नेताओं और नई पीढ़ी के नेतृत्व के बीच टकराव को लेकर विवाद गर्म है। जहां पुराने नेता ममता के प्रति निष्ठावान हैं, वहीं नई पीढ़ी के नेता, खासकर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में अधिक लोकप्रिय माने जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, जो पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव हैं, समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। पार्टी अनुशासित है, यहाँ कोई एकाधिकार नहीं कर सकता। ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ कोई एकाधिकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा, पार्टी ये तय करेगी कि जनता के लिए क्या सही है। हम मिलकर काम करते हैं, ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। राजनीतिक सलाहकारों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, कुछ सलाहकार घर बैठकर सर्वेक्षण करते हैं और बाद में उन्हें बदलते हैं, लेकिन वे वोटर नहीं ला सकते। ये काम बूथ कार्यकर्ता करते हैं, जो सीधे गांवों और लोगों के साथ काम करते हैं। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर नाराजगी जताते हुए ममता ने कहा, मैंने इस ब्लॉक का गठन किया था। अब जो लोग इसे चला रहे हैं, उन्हें काम संभालना होगा। अगर वे काम नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जरूरत पड़ी तो मैं विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व भी कर सकती हूँ और मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाल सकती हूँ। सीताराम उपाध्याय, जो कि डीएवी हाई स्कूल आसनसोल में बंगाली भाषा के शिक्षक रहे, वो आज हमें निराश कर गए। सीताराम उपाध्याय, जो कि डीएमवी हाई स्कूल आसनसोल में बंगला भाषा के शिक्षक रहे, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी में लिखते और पढ़ते रहे। एक योग्य शिक्षक होने के साथ साथ अच्छे कवि भी रहे। ये भोजपुरी में गीत लिखे, एल्बम भी निकले। उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। वह छात्रों के साथ साथ अपने सहकर्मियों के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। न्यूज मोमेंट टीम उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ईश्वर उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। उनके दोस्त और छात्र सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों की आंदोलन पर याचिका खारिज की। याचिका में शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इस तरह हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही ये नेशनल हाईवे एक्ट और बीएनएस के तहत भी अपराध है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के निर्देश दे। साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों को भी निर्देश दिया जाए कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें। ये याचिका वकील अमित कुमार चावला के माध्यम से गौरव लूथरा ने दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पहले से याचिका लंबित है, तो ऐसे में नई याचिका क्यों दाखिल की गई है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम हालात से वाकिफ है। ये याचिका गलत संदेश देती है। उन्होंने कहा, आप चाहे तो लंबित मामले में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम नई याचिका नहीं लेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पब्लिसिटी के लिए किया गया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि हम नई याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। प्ले। रानीगंज ट्रैफिक पुलिस के अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू। रानीगंज से पवन शर्मा के पुलिस आयुक्त द्वारा पश्चिम बर्दवान आसनसोल रानीगंज के रानीगंज बाजार में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार की सुबह रानीगंज पुलिस और रानीगंज ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। एल पुलिस सूत्रों के अनुसार रानीगंज बाजार में जो दुकानदार है वे दुकान के बाहर सड़क पर सामान रखकर बैठे रहते हैं। एल तब आम लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एल आम लोगों की ओर से तरह तरह की शिकायतें आ रही थीं। एल इसलिए रानीगंज पुलिस और रानीगंज ट्रैफिक पुलिस ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू किया। एल आज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी। अलीपुर मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण नए सप्ताह में सर्दी का आगमन रुक सकता है। सोमवार तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ दिनों में दक्षिण बंगाल में तापमान में काफी गिरावट आई है। कल दक्षिण बंगाल के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब था। हालांकि कल से फिर से तूफान और बारिश की संभावना है। पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, बीरभूम और दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, केवल हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर के बाद बंगाल में पूरी तरह से सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। नए सप्ताह में उत्तर बंगाल में भी बारिश की संभावना है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तर दिनाजपुर और मालदा में भी मंगलवार तक हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर बंगाल में तापमान में भारी गिरावट आई है। अगले 5 दिनों में उत्तर बंगाल के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। आसनसोल मंडल ने महिलाओं और दिव्यांगजनों कोचों पर अधिक त्रिमित यात्रा पर लगाम लगाई। आसनसोल। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने महिला और दिव्यांगजन कोचों में अनधिकृत यात्रा पर लगाम लगाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिससे सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी यात्रा वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को बल मिला है। महिलाओं और दिव्यांगजनों, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित ये कोच कमजोर समूहों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंधकार प्रवेश के मुद्दे का समाधान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) गहन प्रवर्तन अभियान चला रहा है। अक्टूबर 2024 में रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत 99 अभियान चलाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप महिला डिब्बों में अनधिकृत यात्रा के लिए 392 गिरफ्तारियां हुईं। नवंबर 2024 तक इन प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 139 अभियानों के परिणाम स्वरूप 568 गिरफ्तारियां हुईं, जो अभियानों में 40% की वृद्धि और पकड़े गए अपराधियों में 44.9% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह धारा 155 के तहत मंडल ने विकलांग कोचों में अनधिकृत यात्रियों को लक्षित किया। अक्टूबर में 85 गिरफ्तारियों के साथ 22 अभियान चलाए, जो नवंबर में दोगुने से अधिक बढ़कर 46 अभियान और 178 गिरफ्तारियां हो गईं, जो प्रवर्तन कार्रवाइयों में 109.4% की वृद्धि को दर्शाता है। मंडल ने इन आरक्षित स्थानों की मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। इसमें रेलवे अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमित निरीक्षण, औचक निरीक्षण और अपराधियों के लिए सख्त दंड शामिल है। इसके अतिरिक्त यात्रियों को इन निर्दिष्ट कोचों का सम्मान करने के महत्व पर शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। पोस्टर, सार्वजनिक घोषणाएं और अन्य आउटरीच प्रयासों के साथ उनके आरक्षित प्रकृति पर जोर दिया गया है। यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या अन्य शिकायत निवारण प्लेटफार्मों के माध्यम से उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपसी सम्मान और सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देकर इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और दिव्यांगजन यात्रियों को सशक्त बनाना है,
जिससे यात्रा के दौरान उनका आत्मविश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। Kindness is like snow, it beautifies everything it's cover. दयालुता बर्फ की तरह है, यह जिस चीज के ऊपर ढकी होती है उसे सुंदर बना देती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।